It's live. It's live. Yeah. Good evening. Welcome. Thank you. Thank you. Gratitude. The gratitude Back. from back. अगर ज्यादा की अगर है ज्यादा की तो काबिल बनिए, तो काबिल बनिए। खुद को इम्प्रूव खुद को improve करना है, करना है, लाइफ में तो खुद को करना है, इम्प्रूव तो खुद को improve To interrupt, your voice is not voice clear. even I feel Even so, I feel so. I'll just go out I'll just go out and back. I don't know why it's I don't know why cracking. it's Back again. back Sorry again. for the Sorry technology. for the technology. It's again echoing. I Again, think. echoing, I think. It is. It is. Technical issues. Yes. Yes. Hello, am I audible? Hello, am I audible? I can hear you. Yeah, you are audible. You are audible. Yeah. But we both are Both are the voice is the voice is stop. Start over. Hello. Hello. Am I audible? Am I audible? I can hear you. yes. Yes. Sorry for the technology. Sorry for the technology. Viewers, thank you for being here. Thank you for being here. अगर ज्यादा की दावत है, ज़्यादा की दावत है। I think still echoing. I think we should all go back. We should all go back and start again. Okay, restart then. Okay, Yeah. Yes. Okay. Lakshmi ji, am I audible? Yeah. I can hear you. Now. Yeah, and I Actually think having some problem. yes.
Hello. It's okay now? What a Yes, glitch. it is. या अगर ज्यादा की चाहत हो तो काबिल बने, लाइफ इंप्रूव करनी है तो खुद को इंप्रूव करें, अच्छी जिंदगी चाहिए तो अच्छी चीजें सीखें, लाइफ चेंज करना है तो खुद को चेंज करें। आज हमारे बीच दो ऐसे काबिल, बेहतर, इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ देमसेल्फ इस फ्लोर को बेटर बनाने के लिए, आप लोगों को बेटर कैसे बनना है ये बताने के लिए दो ऐसे लोग आज आए हैं जो हमारे न्यू मी टॉक शो में बिकॉज ऑफ द प्रायर कमिटमेंट पार्ट नहीं कर पाए थे, 2020 में हमारे साथ नहीं आ पाए थे। कमिंग टू 2021, आई वेलकम नेहा जी एंड लक्ष्मी जी। टॉकिंग अबाउट नेहा जी, शी इज अ साइकोथेरेपिस्ट, psychological counselor, certified career counselor, parent coach, advanced life coach, transactional analysis, mindfulness meditation training, emotional intelligence, Bodhi Trees founder director, मेरी पहचान society president, and workathon for mental illness, and a very known face on all TV channels. Welcome Neha ji with such a broad introduction, and we are thankful that you're here. Thank you. And namaskar to all. Grand Welcoming- welcome. Welcoming Lakshmi ji. She was a former secretary of BJP Mahila Morcha, North Bengal, North Kolkata district, former Mahila Morcha, West Bengal, social media, IT head, entrepreneur in real estate, social activist, uplifting downtrodden women. She's associated with Krishab Suraksha Abhiyan. She's the director of Business Development Group, a referral network of referral business of North Bengal. Huge. It's a long list. Both dominant Warm lady are welcome. here. One onto a health, mental, socially, both social activists, and onto a real estate dimension where women generally don't go for. So it's a huge pleasure for Miracle Ritual to have such Break an the glass eminent. ceiling, I guess. Seriously. Indeed. So it's it's a pleasure for the Miracle Ritual for both of you to be here. I'm thankful. Thank you so much for being here. So we are starting off with, लोग सब चीज के बारे में बातें करते हैं, इंटरनेशनली क्या हुआ, विराट को लड़की हुई, कोरोना वैक्सीन स्टार्ट हो गया, एवरीथिंग। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ को देखें और हम अपने आप को मार्क्स देना स्टार्ट करें, हेल्थ में अगर हम अपने आप को मार्क्स देते हैं आउट ऑफ 10 तो आप कितने को देंगे? अगर आप अपने आप को फिनेंस में मार्क्स देते हैं आउट ऑफ 10 तो कितना देंगे? अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में मार्क्स देना चाहें तो कितना देंगे? अगर हर डायमेंशन ऑफ लाइफ में आपका 10 आउट ऑफ 10 है तो इट्स वेल एंड फाइन, बट ऐसा होता नहीं है। ओनली 3% ऑफ पीपल लिव ड्रीम लाइफ, 97% पीपल डज नॉट लिव द लाइफ ऑफ द ड्रीम एंड दे डोंट इवन टॉक अबाउट इट। वो इस बारे में सोचते भी नहीं है। तो कमिंग अप विद नेहा जी व्यू ऑन इट, आपको क्यों लगता है मैम कि इसके बारे में ना बातें होती है ना सोची जाती है? हम जैसे एक दो प्लेटफॉर्म लेके आते हैं और आप लोग जैसे लोग जो वर्किंग टूवर्ड्स इट, योर प्रोफाइल इटसेल्फ शोज द बेटर वर्जन, हाउ यू हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग एंड बीइंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. सो प्लीज प्रोवाइड एन इनसाइट टू दिस. क्या होता है कि जब भी हम इस दुनिया में पहला कदम एक बच्चा रखता है तो वो एक परिवार में, एक समाज में कदम रखता है. ठीक है, वो जो चीजें अपने आसपास देखता है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फ्रॉम द वेरी मोमेंट स्टार्ट हो जाती है. तो जहां से भी लर्निंग स्टार्ट होती है वो है हमारी फैमिली, हमारे नेबर्स और हमारे आसपास के लोग. अब हम आते हैं बात कही कि लोग एक ड्रीम वर्ल्ड में जीते हैं, लेकिन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए
क्या करना है इसके बारे में बात नहीं करते हैं। इसके बारे में बात नहीं, बड़ा फैक्टर है जो है फियर ऑफ फेलियर। दूसरा ही इसका डायमेंशन है फियर ऑफ सक्सेस। तो ये दो चीजें हैं जिसको हम ऐसे वे करते हैं। अगर आप तौले तो ये है फेलियर है सक्सेस। लेकिन क्या ये दोनों फैक्टर्स अलग हैं? ऐसे ही एक बच्चा दुनिया में आता है, उसको ये सिखाया जाता है डे वन से फेल मत हो जाना। और फेलियर एक ऐसा धीरे धीरे इंसान के जहन में हम बोलते हैं बिलीफ सिस्टम एक ऐसा क्रिएट हो जाता है, बिलीफ हो जाते हैं कि उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो ये नहीं समझ पाते कि सक्सेस के रास्ते में फेलियर्स भी आते हैं और जो फेल नहीं होता वो कभी सक्सीड नहीं कर सकता। तो हम इसको अपनी भाषा में बोलते हैं देयर इज नो फेलियर, ओनली अ फीडबैक। राइट? सो ये हमको अब मैं जो काम करती हूँ एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, आप अगर किसी भी ऐसे न्यूरोसिस की बात करें जहाँ पे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, या बच्चों के अंदर इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, पीयर प्रेशर है, सेल्फ आइडेंटिटी है या आइडेंटिटी क्राइसिस है, ये सारा जो भी अम्ब्रेला है उसमें अगर आप देखें इसका बहुत मैटर है कि वो कितने बिलीफ्स में है और उनको अपना बिलीफ सिस्टम एक पुराना ऑब्सोलीट बिलीफ सिस्टम, नॉन प्रोडक्टिव बिलीफ सिस्टम तोड़ करके अगर उनको एक नया वर्जन चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके नए बिलीफ्स को बनाना होगा। जैसे कि हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपडेट मांगता है, लेकिन हम में से कितने लोग अपने आप को अपडेटेड वर्जन में लाना चाहते हैं। तो ये अपडेटेड वर्जन, ये न्यू वर्जन हर रोज हमें सीखने के साथ द मोमेंट वी वेक अप इन द मॉर्निंग वी नीड टू हैव दिस कॉन्सेप्ट इन आवर माइंड कि आज के दिन क्या लर्न करने वाला हूँ, आज के दिन मैं अपने आप को किस अपडेट करने वाली हूँ, आज के दिन कौन सी चीजें हैं जो मेरे लिए नॉन प्रोडक्टिव है, उनको मुझे छोड़ना होगा, कौन से कंसेप्टिव डायमेंशंस को अडॉप्ट करना होगा। Beautifully being said by Neha ji. Beautifully added by Neha ji. I would like Lakshmi ji to continue on to the same topic. Can you hear me? Yeah, sure. Yeah, it's clear. Yeah. There is a fear of anxiety, fear of rejection, fear of they are being stressed out. Their environment in which they living, I think they have been having some setbacks in the back of their mind. They should have a clear mind. And they should always have a dream. It's never too late. You can always kickstart your day. And you can achieve whatever you aspire. Give wings to your dreams. You should be crystal what you want to achieve in your life. There are a lot of hurdles. But you have to come out of your comfort zone, from your familiar zone, to achieve whatever you want. You are one like you. You have your uniqueness. You have to know your flaws, your weakness, and you have to work on it. What is holding you back? You have to come out. You have to work on it. And then you can have a successful life. It's never too late. It's an awesome insight. It's never too late. You can start off today itself. You can take this moment
to be a better version of yourself. But हम लोग में तो ये बहुत आसानी से कहा जाता है, सब कुछ थोड़ी ना मिलता है, और हम बहुत आसानी से इसे ले भी लेते हैं कि हाँ सब कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ इतना लकी थोड़ी ना है कि पैसे भी होंगे, हेल्थ भी होंगे, रिलेशनशिप भी होंगे, सोसाइटी में इज्जत भी होगी और सारी चीज। और आज हमारे पास दोनों ऐसे लोग बैठे हैं कि दोनों के पास दोनों चीज है, दोनों को एक भी बीमारी नहीं है, दोनों फिनेंशियली भी वेल ऑफ हैं, दोनों के फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी है। क्रॉस तो नजर ना लगे। So why this concept? I'll start off with Lakshmi. I think more than achieving everything, you need to be happy. Whatever you get in life, you need to be happy. I don't think you need to be a celebrity. You can always have a beautiful life which can make you happy. I think the moral thing is you need to be happy. आप खुश रहेंगे तो आप अच्छी चीजें कर पाएंगे। आपके दिमाग आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ आप जाना चाहते हैं। Mind is full of negativity. I don't think you can go beyond your imagination. So you need to feed your mind the positive thoughts. Very true. With positive mind we go towards positivity. नेहा जी, ये लोगों को क्यों लगता है कि all paradigms, all dimensions of life एक साथ अच्छी नहीं हो सकती है? ये कहाँ से आए हम लोग के जीवन में और क्यों हम इसको एक्सेप्ट करके रह रहे हैं? So I believe I have a different perception to it. Basically हम अगर paradigms की बात करें, subjectively हर इंसान का paradigm अलग हो सकता है और प्रायोरिटाइज हर इंसान अपने तरीके से करता है, उनकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं लाइफ में। बट द बेसिक प्रॉब्लम इज कि हम जो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है ना लाइफ में, उनको हम ओवरलुक कर जाते हैं। तो अगर लग्जरी की बात हम करें या प्लेजर की बात करें तो वो नेवर एंडिंग है। आप जितना ऐड ऑन करते चले जाएंगे तो कम दिखेगा, because there is no set standard. Yeah. Now there is a difference between pleasure and happiness. लोग जो चीजें करते हैं, जिन पैराडाइम की बात कर रहे हैं कि हम ये गाड़ी ले लेंगे, हमारा एक अच्छा स्पाउस हो, हमारा बहुत ही अच्छी कोठी हो, हमारे पास इतनी ज्वेलरी हो, हम इतने फॉरेन ट्रिप्स करें, हमारे पास इतने ब्रांडेड क्लोथ्स हो, ये हैप्पीनेस एक्चुअली नहीं है, मोमेंटरी प्लेजर है। सो इट्स अ विशियस द मोमेंट यू गेट समथिंग, थोड़ी देर के बाद उसका मजा खत्म हो जाता है क्योंकि ये प्लेजर है। ना हैप्पीनेस is being created. Happiness is within. तो कितने लोग हैं जो इस समंदर में गोते लगा करके मोती निकालना चाहते हैं या जानते हैं या कोशिश करते हैं। दूसरी चीज, लोगों में एक फियर भी है, या फिर आप कह सकते हैं कि people procrastinate their happiness. एक बच्चा है सोचता है जब मेरा IIT JEE क्रैक हो जाएगा then I'll celebrate with my friends. उसने अपना आज का मोमेंट सेलिब्रेट नहीं किया, वो प्रोक्रास्टिनेशन हो गया। फिर वो सोचता है मुझे एक अच्छा जॉब मिल जाएगा या मिल जाएगा then I'll definitely celebrate. फिर उसने एक मोमेंट को प्रोक्रास्टिनेट कर दिया। तो होता क्या है, हम आज में जीते ही नहीं, कल में जीते हैं, या फिर हम बीते हुए कल में जीते हैं, या फिर हम आने वाले कल में जीते हैं। इसीलिए हैप्पीनेस कहीं ना कहीं प्रेजेंट मोमेंट की खुशियां हैं, वो कहीं ना कहीं हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ आज बहुत ही खराब है। It seems there's some network glitch in Neha ma'am. Yeah, ma'am. We couldn't hear the last line. There was some network glitch. So if you could. I said कि ये सारी चीजें हम because we are dwelling in past and ruminating about future, तो कहीं ना कहीं we are missing the moment, the now, the here and now. आज मैंने कुछ अच्छा सा अगर किसी दोस्त से किसी हाथ टू हाथ टॉक हो गई, I should celebrate this moment.
I should celebrate this moment. And I feel I'm blessed. And I feel I'm blessed. Celebrate the moment. Celebrate the moment. Procrastinating our that would never come. ये लोग डिप्रेशन में है, लोग डिप्रेशन में है, लोग डिस्ट्रेस में है। डिस्ट्रेस कई बार पॉजिटिव भी होता है। That's so correctly been said. Power of now. Actually तो हमारे पास सिर्फ वही है, हमारे पास ना पास्ट है ना फ्यूचर है। वो तो एक ड्रीम की तरह हम देखते हैं कि वो बीत गया, हमारे हाथ में नहीं है। जो आने वाला पल है वो हमारे हाथ में नहीं है। फिर भी हम यहाँ आगे और पीछे रहते हैं। और जिस क्षण आपके पास पावर है एक्ट करने का, जिस क्षण आपके पास पावर है कुछ करने का, एक्शन लेने का, रिजल्ट निकालने का, वो आप यूं ही जाने दे देते हो। सो वेरी राइटली सेड, पावर ऑफ नाउ, यूज इट राइट नाउ। अभी प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए कि बाद में करेंगे, कल बेहतर बनेंगे, कल ये करेंगे। कल आपके पास नहीं है, ना बीता हुआ कल है ना आने वाला कल है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ अभी, आज, अभी, इसी मोमेंट है। बेटर वर्जन ऑफ, जब भी बात करते हैं, आई एम तो क्रेजी अबाउट इट, टेलिंग पीपल बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एवरी मोमेंट बी अ बेटर देन योर सेल्फ। आज जो इस क्षण जो आप है, नेक्स्ट क्षण में बदल जाइए। लेकिन हम इतना न्यू मी टॉक शो लगाए 15 दिन के लिए, इट वॉज वेरी सक्सेसफुल। आई एम थैंकफुल फॉर इट, क्योंकि उसके बाद मेरे दो न्यूज चैनल में प्रोग्राम्स चल रहे हैं एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द न्यू मी टॉक शो एंड द पीपल कनेक्टिंग। लेकिन फिर भी जब भी मैं किसी से बात करती हूँ, apart from some coaches and some people who are regularly working, majority of people doesn't want to change at all. They want to change here. They want to take action. They say यहाँ मेरा finance नहीं ठीक है, या मेरा health नहीं ठीक है, मेरा mental health ठीक नहीं है, मुझे ये नहीं समझ में आता। They accept, जो उनको रिजल्ट मिला उसको एक्सेप्ट करते हैं, और जो खुद है उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। नहीं खुद को एक्सेप्ट करते हैं इन अ सेंसेस कि अगर उनके पास पढ़ाई नहीं है तो वो उसको एक बहाना की तरह देते हैं कि मेरे पास पढ़ाई नहीं है, मैं अच्छा नहीं कर सकता हूँ, या उनके बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, तो मेरे बैकग्राउंड में कोई है नहीं हेल्प करना, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इवन इफ आई गिव माई 100%, आई एम नॉट गोइंग टू बी बेटर। दिस इज व्हाट आई एम, आई डू एवरीथिंग दैट आई कैन। तो समवे यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। अगर आप 100% अपना दे रहे होते तो आप वहां नहीं होते जहां हो। अगर आप वहां खुश नहीं हो, वहां अगर आपको 100% नहीं मिला है, तो वाई पीपल आर एक्सेप्टिंग रिजल्ट, या वाई पीपल आर लिमिटिंग, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग देमसेल्फ बट एक्सेप्टिंग रिजल्ट। The change is constant. Yeah, change is constant. That's very right. So here I just wanted to know, ये पता करना है कि लोग अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट कर अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप को रियलिटी में देखना, वो क्यों नहीं करते हैं? स्टार्टिंग विद नेहा जी। So very rightly put up. I tell you one thing. आपने जो statements बोले, I always go on because हमारे पास language है, और जो भाषा हम यूज करते हैं वही thought process हमारा रहता है। जो इंसान बोलता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, या they are looking for any number of excuses not to do something. This becomes their self-talk. The inner dialogue. Right? आप देखो, हम एक ऐसे कॉस्मोस में हैं, अगर हम मेटाफिजिक्स की बात करते हैं या एनर्जी की बात करते हैं, we attract everything. Law of attraction. Yes, law of attraction है। और अगर इसको हम न्यूरोलॉजिकली भी बोलें तो we need to become the master of our mind, but negative self-talk makes us the slave of our mind.
तो अगर नेगेटिव सेल्फ टॉक हमें कह रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, वी कंटिन्यूअसली जज आवर थॉट्स और वी आर ट्रैप्ड कि हमारे पास क्या नहीं है, व्हाट आर वी डिप्राइव्ड ऑफ। तो न्यूरोलॉजिकली हमारा जो ब्रेन है वो किस चीज पे काम कर रहा है, हमारा बिहेवियर क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। हमारा थॉट हमें कह रहा है तुम कर ही नहीं सकते, सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है तुम कर ही नहीं सकते। तो ये तो एक ऐसा प्रोजेक्टर है ना कि जैसे मूवी को हम नेगेटिव से फिर पॉजिटिव में देखते हैं, वैसे ही व्यवहार हमारा जो होता है, बिहेवियर हमारा होता है, वो थॉट जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है वही हमारा बिहेवियर है, इसलिए हम नहीं कर पाते। तो सबसे पहले अगर कोई भी इंसान एक न्यू वर्जन आता है तो उसको अपना नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा और उसको एक न्यू सेट ऑफ थॉट्स क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे वो एबंडेंस को अट्रैक्ट करे कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास जो भी रिसोर्सेज हैं। We need to be more solution focused. Solution देख करके जो रिसोर्सेज हैं उसके दायरे में मैं क्या कर सकता हूँ। Know your problem, give power to your solution. Don't be a victim of your problem. Moving on to Lakshmi ji, लोग क्यों अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लोग क्यों अपने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लेते हैं? एक्चुअली उनके माइंड में ये सेट है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। वो दिमाग में एक हॉरर मूवी बना लेते हैं, उससे वो डरे हुए रहते हैं। वो जो देखना चाहते हैं वही उनके दिमाग में रहता है, वही वो देखना चाहते हैं। उनका माइंड एक हॉरर मूवी की तरह चलता है जिससे वो हमेशा कांस्टेंट फियर में रहते हैं। दैट माइट बी फियर ऑफ रिजेक्शन, fear of failure. Either they are in anxiety or stress. They have to have a positive vibes, positive minds. For that you have to meditate. If you are meditating, if you are having some positivity, then only you can lead your life, a successful life, or whatever you want to achieve in your life. If you are living in constant fear, you cannot move on. Possibly said, we all know oldest feeling, emotion that we have is of fear. और fear हमेशा survival पे काम करता है, जहाँ है वहीं आपको रखे रखता है कि आप वहाँ बस रह लो, बचे रहो, गिरो नहीं। तो ये fear हमेशा आपको survival mechanism में रखता है। इस survival mechanism से कैसे निकला जाए, नेहा जी? Can you please repeat the question? I'm so sorry. I was just checking the settings. जब भी हम लोग फियर की बात करते हैं तो फियर सबसे बड़ा इमोशन है, सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरह काम करता है। वो हमें सिर्फ रखने का काम करता है, एक हम जो बच रहे ये करता है। तो ये अर्चना जी, I'm so sorry, your voice is breaking. It's cracking. I can't hear you properly. I'm just putting it on. Actually, she's asking how to overcome the. Okay, so see, I tell you one thing. Fear is a natural emotion. And nobody can deny all the natural emotions because वो हमारे nervous system का हिस्सा है। हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं? नेगेटिव इमोशंस होते हैं फियर, एंगर, रिसेंटमेंट, डिस्पेयर, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं। तो इमोशंस जहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, एमिगडाला एक छोटा सा मटर के दाने के बराबर एक यहाँ पे हमारा ब्रेन में एक डिवाइस होता है। तो ये ऑर्गन जो है ये ऑटोमेटिकली इमोशंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब हमें अगर ये सिखाया जा रहा है कि आप अपने नेचुरल इमोशंस को कर्ब कर दीजिए, तो हम अपने आप से लड़ रहे हैं, हमारा कॉन्फ्लिक्ट अपने आप से ही चल रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मान लिया फियर ऑल ऑफ अ सडन नहीं आता है, ये ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है।
तो अगर किसी बच्चे को बचपन में डर है मैथ से और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया गया सही वक्त पे, तो वो मैथ से क्या करता है, भागने लगता है, एस्केप करने लगता है। और जैसे जैसे वो एस्केप करने लगेगा वैसे वैसे उसकी प्रॉब्लम और ज्यादा एग्रीवेट होती चली जाएगी। और एक टाइम आएगा जब वो नेचुरल इमोशन से एक ऐसा इमोशन बन जाएगा जो शायद मेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आएगा, जिसको हम फोबिया बोलते हैं, राइट। तो फियर एक नेचुरल इमोशन है, सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करिए कि हम भाग नहीं सकते हैं। ऑल्सो जितना हम किसी फियर से भागेंगे वो हमें उतना डराएगा। तो फियर को हमको ओवरकम करने का सबसे पहला तरीका है एक्सेप्ट करना है, एक्नॉलेज करना है और उसको फेस करना है। तो जब हम जितना ज्यादा एनकाउंटर करेंगे उन सिचुएशंस को, उतनी जल्दी हम फियर को ओवरकम करेंगे। ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि अगर फियर कहाँ से आता है, देखिए हम लर्न कैसे करते हैं। एक साइकोलॉजी में थियरी है कंडीशनिंग थियरी ऑफ लर्निंग। तो वी ऑल आर कंडीशन्ड। तो आप देखिए अगर आप मोबाइल की बात करें तो हम एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं। तो हमारे दिमाग में अभी कितनी एप्लीकेशंस डाउनलोडेड हैं। मोबाइल में जब स्पेस फुल हो जाता है या कोई एप्लीकेशन हमारे काम की नहीं है तो हम उसको डिलीट कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, हमें लर्निंग तो सिखाई जाती है पर अनलर्न करना सिखाया ही नहीं जाता है। तो जितनी लर्निंग की इम्पोर्टेंस है उतनी अनलर्निंग की भी इम्पोर्टेंस होती है। अगर हमने फियर एक चीज से हमें फियर आया और जब हम बाहर कदम रखते हैं तो दूसरे लोग भी हमें डराने के लिए बैठे हैं। अच्छा ऐसा हो गया तुम्हारे साथ, ओहो ये होता है, अरे बाप रे क्या हुआ, लोगों ने 1+1 11 कर दिया। तो अब ये है कि अगर आपको अपने फियर को ओवरकम करना है तो सबसे पहले अगर ये फियर है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, इट इज अ वेरी नॉर्मल नेचुरल इमोशन, और उसको फेस करिए, देखिए क्या होता है। कई बार फियर रियलिटी में नहीं होता है, हमारे माइंड में होता है। बिना असम्पशन एक बार आप इससे एक्सपोज होइए, एक दो बार देखिए कि क्या होता है और प्रॉब्लम्स No, awesomely said कि encounter. I always, even I firmly say this. Fear से जीतना है तो fear से भिड़ जाओ। जब तक भिड़ोगे नहीं, जानोगे नहीं, जब तक जानोगे नहीं तब तक ओवरकम नहीं कर पाओगे। Coming to डर के आगे जीत है। या 100% डर के आगे जीत है। तो ये हम लोग ने बात की है कि लोग क्यों इम्प्रूव नहीं करते हैं। हमने कल्चर की बात की, हमने परवरिश की बात की, हमने एनवायरनमेंट की बात की, हमने उनकी अपनी फियर की बात की, फेलियर नहीं चाहते इसकी बात की, बिलीफ सिस्टम की बात की। तो करें क्या, व्हाट शुड वी डू, हम ऐसा क्या करें कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू गॉट टू नो योरसेल्फ, हु आर यू, आप कौन हो। आप यूनिक हो, आप अकेले एक ही पीस हो, नो सेकंड पीस। आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, फियर आपका क्या है, क्या चीज से आप डरेंगे, उसको पहले रिकॉग्नाइज करो, उस पर वर्क करो। उसके बाद उसको उस पे काम करने के बाद तो फियर को मन से हटाना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। कांस्टेंट हैमरिंग, यू से ना, यू से कांस्टेंट हैमर योर why am I in fear, I cannot fear, my mind cannot overcome that, I have to overcome the fear. Fear मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता।
है ना? Right, very right. Got to You cannot work on it. let something rule you. Yeah, this seems to be a network glitch. Okay, moving on to आपको पहले अपने आप को जानना होगा. Know yourself. Start with why. This is an awesome thing. A book we start with why, and that's one of the When you start with why, हर चीज के पीछे अगर आपका why है, तो आपको एक बहुत क्लैरिटी मिलती है और क्लैरिटी इज पावर. जब आपको ये पता होता है कि इस क्षण में क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, when you know why you are doing it, then you can better handle those things, and you know this is important or not important, because you are taking each step, each moment, and you know what you're doing and why are you doing. So that when you get it, तो आपको पता होता है कि आप क्यों कर रहे हो, तो वो आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करता है. So that's an awesome line. Start with why, know yourself. Continuing the same question, Neha जी, क्या करें? Ji. So I have two dimensions again, which is the most important thing. One is self-acceptance. So many a times we believe that either I'm a superwoman or I'm a superman. We need to understand that everybody is unique. They are blessed with certain strengths, and also nobody can ever be perfect to achieve everything in life. Nobody can be free of scope of improvement. There is always a scope of improvement. Right? So let's suppose I am comparing myself to some other person, and I am not aware of my strengths and limitations. Where would I work upon? How would I proceed further? मैं कैसे आगे काम करूं? मुझे तो दिख रहा है अरे इसने ये कर लिया, मुझे भी करना है, पर मैं तो कर ही नहीं पा रही. तो क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे आपने बहुत बार आजकल तो व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं. तो आप अगर किसी की क्षमता किसी और से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट में आएगा. देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी. यानी कि मछली की क्षमता है तैरना और चिड़िया की क्षमता है उड़ना. लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे से कंपेयर करने लगे तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में सुसाइड कमिट कर लें, है ना? That I'm unable to do anything. यही हम कर रहे हैं और यही हमारे अंदर डर पैदा करता है. तो my point is कि हम एक बहुत बताते हैं और स्ट्रेंथ फाइंडर भी है. अगर यहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन जाके देख सकते हैं. तो आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसका एक चार्ट बनाइए. Let's say आप अपने 10 strengths लिख लीजिए. You could be a good singer, you could be a good cook, you could be a good dancer. कोई भी trait हो सकता है. You must be a compassionate person. Strengths आप अपने देखें, एक आकलन कर लें और एक लिस्ट बनाइए लिमिटेशंस क्या है. So to know yourself better, who you are, very very question. तो वो तो Maslow's needs hierarchy self-actualization आ जाएगा. But the point is कि यहाँ हद तक कुछ परसेंटेज संभव है. जब आप अपने आप को जानने के लिए एक लिस्ट बनाइए और हर रोज सोचिए कि एक काम नहीं कर पाता, आई विल लर्न. लोग करना सब चाहते हैं पर एफर्ट नहीं लेना. जैसा अर्चना जी आपने बोला कि लोग रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं. तो ये उनको समझना होगा effort is equivalent to your result, and your result is equivalent to your effort. तो आप 50% हाफ हेल्थ भी हाफ मिलेगा. आप होल हार्टेड कोई काम करिए and as Buddha says, you become what you practice.
है ना। तो इसको रिपीटेडली काम करते रहिए, दूसरों से कंपेयर मत करिए। जो आपका पोटेंशियल है, आपकी क्षमताएं हैं, रीजनेबल रहकर इसके दायरे में यदि आप काम करते हैं तो आप देखेंगे यू हैव गॉट विंग्स टू फ्लाई। Awesome. That was two insights. Know yourself, and the tools were given. Do whatever. You are unique. That is your power. जो हमारी दोनों यूनिक गेस्ट, एमिनेंट गेस्ट कह रहे हैं, एंड टाइम बाउंडेशन है. इट्स ऑलरेडी मोर देन 40 minutes एंड वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस कि शुरुआत करना है. तो जैसे लक्ष्मी जी ने कहा कि यू नीड टू नो योरसेल्फ, नेहा जी ने बताया कि आप अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को लिखें. देन अगेन लक्ष्मी जी सेड यूनिक, यू आर यूनिक, दैट इज व्हाट यू आर यू. एंड नेहा जी ने भी कहा कि मछली को चिड़िया के साथ कंपेयर नहीं करना है. देयर लॉट एंड लॉट फॉर इम्प्रूवमेंट. आप जहां भी हैं वहां स्कोप है इम्प्रूवमेंट का. Since we are having time glitch, yet I would like to have that question from Neha ma'am. Neha ma'am ने बोला हर चीज में अच्छा हो जरूरी नहीं है. एंड एक तरफ हम लोग अबंडेंस यूनिवर्स की बात करते हैं, एक इन्फिनिट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, और फिर एक तरफ हम अपने आप को कहते हैं कि इट्स ओके टू बी नॉट गुड एट एवरीथिंग. सो समटाइम आई फील देयर इज अ मिस. यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन लगता है लोगों को लगता है नहीं हम एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है हमें नहीं आता है. तो इस प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाए नेहा जी? जी मुझे लगता है कि हमारे अंदर ऐसा 20 से 25 साल में बोलूंगी चेंज आया है. हर इंसान जानना चाहता है. शायद ये गूगल के ट्रेंड में आने के बाद ऐसा हुआ है. तो हमारे क्लिनिक में भी जब लोग आते हैं तो वो पहले ही गूगल करके आ जाते हैं. आजकल लोग मेडिसिन लेने किसी फिजिशियन के पास भी जाते हैं, गैस्ट्रो के पास भी जाते हैं, तो गूगल करके जाते हैं. खुद ही दवाइयाँ खरीद लेते हैं. हम इंजीनियर भी बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉट भी बनना चाहते हैं. अब ये कहाँ तक रीजनेबल और अचीवेबल है, ये हमको खुद एक बहुत बड़ा सवाल है. बनना जरूरी है. दूसरा ये क्योंकि हमारे अंदर इतनी भाग है कि हम ये चीज में भी इनकलकेट कर रहे हैं. आजकल के पेरेंट्स आप देखिए बच्चे को डांस क्लास भी ज्वाइन कराएंगे, गिटार क्लास भी ज्वाइन कराएंगे, स्पोर्ट्स क्लास भी भेजेंगे, पढ़ाई में भी वो फर्स्ट आना चाहिए. क्या मैंने करना है? हम एक रैट रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. रैट रेस का कोई डेस्टिनेशन भी नहीं है. आप एक ट्रेन में बैठे और आपको पता ही नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको करना है. तो आप पूरी दुनिया घूमते रहेंगे ट्रेन में, कहाँ जाना है. Jack of all trades, master of none. Right. What I mean to say कि आप अपनी जिंदगी एक्चुअल मायने हैं. मुझे लगता है ईयर 2020 में बहुत सारी लर्निंग्स हुई हैं. जो हम ये सारे काम कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं. चीजें आप अपनी लाइफ का एक पर्पस ढूंढिए, बकेट लिस्ट बनाइए और उस बकेट लिस्ट में देखिए कि कौन सी चीजें आपको खुशी देती हैं, आपको गार्डनिंग खुशी देती है. नॉट ऑलवेज इम्पोर्टेंट ऑफिस जाकर आपको एक सक्सेसफुल इंसान बैक टू बैक. आप अपने हेल्थ खोते चले जा रहे हैं. आप 24/7 बैक टू बैक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपने काम में, लेकिन आपकी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब्ड है, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड है, या आपके बच्चे सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, यू वोंट बी काउंटेड एज अ सक्सेसफुल पर्सन. तो सक्सेस इज अ प्योर मिथ. आप तभी सक्सेसफुल हैं जब आपकी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, ये सारी हेल्थ आपको लगता है कि आप सही रख पा रहे हैं, बैलेंस रख पा रहे हैं जितना जरूरी है. Otherwise, there is no standard to it.
तो जो लोग ये जानना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप से पूछें कि जिंदगी का एक्चुअल पर्पस क्या है, और रैट रेस में पार्टिसिपेट ना करें। अगर आप रैट रेस जीत भी जाएंगे, यू विल अल्टीमेटली रिमेन अ रैट। ठीक है, बजाय इसके आप इत्मीनान से जिंदगी को थोड़ा सा आराम से लीड करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, और उस हर मोमेंट को हियर एंड नाउ जिसको हम बोलते हैं, बी मोर माइंडफुल, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, स्टॉप पीपल प्लीजिंग। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आजकल लोगों में मैं देखती हूँ। मेरे पास जो होम मेकर्स आते हैं या जो ऑफिस के लोग आते हैं, इतना ज्यादा हम लोगों को प्लीज करने के चक्कर में अपनी मेंटल हेल्थ खो देते हैं। तो Right. आप ये समझ लें कि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपने टूवर्ड्स है। इफ यू आर हैप्पी देन ओनली पीपल विल रिमेन हैप्पी विद यू। आप खुद से ना खुश होकर किसी को भी खुश नहीं रख सकते, और सीधी सी बात है कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। बेटर है आप पहले सेल्फ कंपैशन सीखिए, अनकंडीशनल रिगार्ड रखिए अपने लिए, तभी दूसरों के लिए अनकंडीशनल रिगार्ड आएगा। लव योर सेल्फ, दैट्स नॉट नार्सिसिज्म ऑल द टाइम। सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। You need to be greedy at times. Yes, you need to be selectively selfish also. Yeah. Unless and until you're not harming anyone. True, true. That's why I said selectively selfish. कि जहां आपको अपनी जरूरत है, जहां I always say कि जब आप मेडिटेट करते हो तो सेल्फ हगिंग, सेल्फ अप्रेजल, ये सारा कुछ, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्स, ये देना बहुत जरूरी है। बिकॉज पीपल आउटसाइड probably they won't come and give you any appraisal, or they won't compliment you all the never, time. never. तो ये हमारे अपने टूवर्ड्स भी एक जिम्मेदारी है जो शायद समाज में हमको सिखाया जाता है। कुछ कहावतें मुझे बहुत ही डिस्ट्रक्टिव लगती हैं, जैसे लोग कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। अब दिस इज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट। क्यों नहीं बनना I चाहिए? always अच्छा करते हो, pat your back, say I'm proud of myself. Of course you need to at times. ट्रू। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है न्यू वर्जन में क्विकली अगर आप देखिए एट अ ग्लांस, तो आप समझ लीजिए नो पीपल प्लीजिंग, सेल्फ कंपैशन, रिगार्ड फॉर सेल्फ एंड रिगार्ड फॉर अदर्स, राइट, बीइंग नॉन जजमेंटल टुवर्ड्स योरसेल्फ। और एक बहुत अहम बात ऐड करूंगी, एक 24 घंटे सिर्फ आप, एक छोटा सा टेक्निक है, सिर्फ 24 घंटे आप बिना कोई नेगेटिव स्टेटमेंट बोले या बिना किसी को क्रिटिसाइज किए आप सिर्फ 24 घंटे बिताइए और मुझे बताइएगा हाउ डिड यू फील। ओनली Awesome. 24 hours. Shall try, definitely. राइट। सो ये अगर 24 घंटे में लक्ष्मी जी अगर आप भी ट्राई कीजिएगा, मैंने किया हुआ है, 24 घंटे अगर हम ये कर लेते हैं तो अगर सोचिए, अगर लाइफ लॉन्ग हम अपने आप को भी जज नहीं करते हैं या किसी को जज नहीं करते हैं या हम नेगेटिव नहीं बोलते हैं, हम अपने आप पे फोकस्ड है, अपने काम पे फोकस्ड है, तो शायद हमारी जिंदगी वाकई एक नया वर्जन होगी, अपडेटेड कभी-कभी वर्जन। सेल्फ सेंटर्ड होना जरूरी हो जाती है, बहुत जरूरी हो जाती है, बहुत। वी नीड टू बी ट्रू एंड ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स। बिल्कुल, तो 100%. ये चीजें न्यू वर्जन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साल 2020 बहुतों के लिए खट्टा, कुछ मीठा, कुछ मिक्स्ड इमोशंस, इट वाज अ मिक्स्ड बैग ऑफ इमोशंस लेके आया। After और the pandemic, I 2021 think people have changed a lot. After the Correct, pandemic, correct. the whole world Correct. was at a standstill. People are focusing on themselves. We need to. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वही मैंने कहा कि जो जिंदगी के सही मायने हैं वो मोमेंट्स लोग भूलते चले जा रहे हैं, जहां से Yes, छोटी छोटी खुशियां मिलती हैं। तो ये ट्रेजर हंट है, हर रोज ट्रेजर हंट करना है, ट्रेजर इकट्ठा करना है और उसको जीना भी है। हम अपने बच्चों के लिए पैसा बना के इतना सारा क्या करेंगे? इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट Yeah, स्पेंडिंग टुडे। Yeah. और हम ये भी, बीइंग अ पेरेंट कोच, आई वुड से कि जो पेरेंट्स ऐसा करते हैं या तो वो अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं कि शायद हमारे बच्चे handicap कुछ थोड़ी नहीं ना कर पाएंगे। है. They also have some Absolutely. ambitions in life. They are not handicapped. You need to let them grow also.
Absolutely. So let them stumble. गिरने दीजिए, fail होने दीजिए, गलतियां करने दीजिए. It's okay. Face the failure and love the failure, and then they will enjoy the success. Absolutely, absolutely. Failure is already a part of success. Of course, totally agree. Archana ma'am is not able to come because of some network glitch. So here I would like to conclude this session. Thank you so much to all our amazing guests. Thanks. It was a wonderful session. Thanks, Neha. Thank you so much, Lakshmi ji. It was a wonderful session. Thanks, Shipra. God bless you all. Thanks, Shipra. Thanks, Miracle Rituals, for having me here. Thanks a lot. Yes, and gratitude to all. Gratitude to God. Bye-bye. Take care. Bye. Take care.